Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you will be enjoying the best of health. I welcome you in my class that is in English for grade 5 and we are learning unit number 15, no bullying. Okay. So my dear teachers and my dear students, this lesson plan I have prepared for you, my dear teachers, and I have divided this lesson according to these lectures. Okay. So let's see how we will arrange our lectures, and lecture number 1 will be about question words. Okay, and we will learn about question word. We will cover a page 137 and its SLO will be, my dear students, recognize the function of different question words. Okay, my dear teachers, and our next lecture, lecture 2, we will learn about similes and analogy, and we will cover a page 138 and its SLO will be analyze and use analogies and more simile in speech and writing use like and as. Okay, lecture 3 will be long and short vowels and diphthong we will learn, and we will cover up page 136, my dear students, and we will cover up our SLO, pronounce and spell long and short vowels and diphthongs. And our next lecture, lecture number 4, under the title of comprehension, we will learn about. Also, we will cover a page 133, 134 and 135, and we will cover up our SLO, recite the poem with actions, recognize, find out, create and use more rhyming words, apply strategies to comprehend questions for appropriate response by marking keywords, verbs and tenses in a variety of the following questions types: factual questions, interpretive, inferential, personal response and open-ended. And the next SLO, write the central idea of the given poem in simple language. So my dear students, in this lecture we will cover up all these SLOs. In lecture number 5 we will learn about reading a report card, and we will cover up page 139, and its SLO will be locate specific information in a calendar and a class timetable and a report card. And lecture number 6, under the title of listening and speaking, we will cover up question number 10 and 11 on page number 140, my dear students. And in this way we will cover up our SLO, practice and use appropriate tone and non-verbal cues for different communicative functions, demonstrate conventions and dynamics of oral interactions in a group to make polite requests for personal reasons. And the last lecture, lecture number 7, we will learn about story writing, my dear students, and we will cover up question number 13 on page number 141. And its SLO will be identify the elements of a story, plot, beginning, middle and end of an account with conflict and resolution, human, animal, imaginary characters and their roles, setting, write a story using the elements of story writing, write a short passage, anecdote, fable, etc. for pleasure and creativity. So yes, my dear teachers and my dear students, these are all I have shared lecture division and its SLO, that how we will cover up this complete unit. Okay, so now we are going to start our unit. Okay, unit number 15, no bullying. Open, my dear students, book page number 133. There is title, unit number 15, no bullying, and the next one, what is its theme? Okay, avoiding social evils, and the sub theme is eluding bullying. Got it? बेटा क्या मतलब है इसका? No bullying mean किसी को तंग ना करना, एक दूसरे को जो हम तंग करते हैं वो हमें तंग नहीं करना चाहिए. तो इसका थीम क्या है, इसका मरकजी ख्याल क्या है? मीन्स इस सारी पोम का जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद क्या है? अवॉइडिंग सोशल इविल्स. सोशल इविल मीन्स हमारे सोशल सर्कल में हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग, उनसे हमें जो गलत हरकतें हैं वो करने से हमें इज्तनाब करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए. सोशल इविल्स मीन जो सपोज इवन इन आवर क्लास, इन आवर स्ट्रीट्स, इन आवर नेबर्स, जो हमारे हमसाए हैं, जो हमारी गलियों में हमें मिलते हैं, तो उनको तंग करना किसी भी हवाले से, तो उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ये उसका थीम है. इल्यूडिंग बुलिंग मीन अगर सपोज आपको कोई तंग भी करता है, अगर आपको कोई तंग कर रहा है, इसके दो मीनिंग है बेटा, ये दो सेंस में इस्तेमाल होता है.
इट मीन्स अवॉइडिंग। अगर आपको कोई तंग कर रहा है तो भी आपने अवॉइड करना है। और नेक्स्ट अवॉइडिंग क्या है कि आपने अवॉइड करना है किसी को तंग नहीं करना है, किसी को तंग आपने भी नहीं करना है, उससे भी अवॉइड करें। अगर कोई आपको तंग कर रहा है तो बजाय उससे कोई लड़ाई मोल रहे हैं या ऐसा कुछ करें तो उससे भी अवॉइड करें, साइड अप्रोच है। ओके, सो एल्यूडिंग बुलिंग मीन्स तंग करने से, यहाँ इसका मकसद ये है कि किसी को भी तंग करने से गुरेज करना चाहिए। ओके, ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। सी नेक्स्ट, वी आर मूविंग नाउ, ओपन पेज नंबर 134 एंड वी आर मूविंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट stanza. Okay, a bully is a boy or a girl who makes you feel bad, who says things or does things that make you feel sad. Okay, now you can judge these lines. A bully is a boy or girl, कि कोई आपको तंग करने वाला क्या हो सकता है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी। who makes you feel bad, जो आपको ये शो करवाता है कि आप मीन्स अजीब सा फील करते हो जब वो आपको तंग करें। इरिटेट होता है ना बंदा अगर हम तंग कर रहे हो, कोई तंग कर रहा हो किसी को। हु सेज थिंग्स आर डज थिंग्स, जो चीजें कहता है वर्बली और कभी कभी करता है, दैट मेक यू फील सैड, जो आपको उदास कर देती है। तो ऐसा है। नेक्स्ट क्या है, अ बुली मे लाफ व्हेन यू मेक अ मिस्टेक और कॉल यू मीन नेम्स, पुश यू, शू यू आर शेक। ओके, अब इसमें इस पैराग्राफ में इस स्टैंजा में आपको क्या बताया जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, इस स्टैंजा में हमें बताया जा रहा है कि जब वो क्या, जो बुली करने वाले बच्चे होते हैं, मींस लड़का भी हो सकता है वो लड़की भी हो सकती है, तो वो बच्चे पता है क्या करते हैं, जब कोई मिस्टेक करता है तो वो उस पर हंसना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई तुमने तो मिस्टेक कर दी, मीन्स गिल्टी फील करवाने के लिए हंसना शुरू कर देते हैं। और कॉल यू मीन नेम्स, या उल्टे सीधे नाम पुकारना शुरू कर देते हैं, या आपको पुश करते हैं, आपको धक्के देते हैं, शेक करते हैं। ठीक है, तो इस किस्म की हरकतें करते हैं जो तंग करने वाले बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा में, व्हाट डू यू डू इफ यू आर बुल्ड टुडे, यू मस्ट ट्राई टू स्टे काम एंड जस्ट वॉक अवे। यस, अब इसमें क्या बताया जा रहा है, अगर आपको कोई तंग कर रहा है तो आपने करना क्या है, हाँ आपने सब्र से काम रखना है, आपने पुरस्कून रहना है और उस जगह से हट जाना है। क्या करना है, अवॉइड करना है। जो हमारा थीम था उसी के मुताबिक, सब थीम के मुताबिक हमने क्या करना है, अवॉइड करना है। अगर हमें कोई तंग कर रहा है तो हमें जरूरी नहीं है कि हम भी वापस उसे तंग करना शुरू कर दें, तो हमने उस जगह को ही छोड़ देना है, अपने आप को पुरसुकून रखना है, काम रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बता रहे हैं, फोर्थ स्टैंजा, गो टेल आ ग्रोन अप दे विल नो व्हाट टू डू, टीचर्स एंड पेरेंट्स आर देयर टू हेल्प यू। ओके, अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि खुद से कुछ नहीं करने लग जाना, जो कि हम मोस्टली करते हैं, आप करते हैं ना बच्चे, आप खुद ऐसा करते हो ना कि अगर आपको किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया तो हमने भी वापस कह दिया, जब रीजन पूछी जाए तो बात बढ़ जाती है, तो फिर कहते हैं इसने मुझे मारा था मैंने भी मार दिया। नो, यू हैव टू स्टे कॉम, यू हैव टू लीव दिस प्लेस। ओके, वहां से हट जाना है अगर आपको कोई तंग करे। लेकिन करना क्या है, इस फोर्थ स्टैंजा में ये बताया जा रहा है, गो टू टेल अ ग्रोन अप, कि अपने किसी बड़े को बताएं। वो आपका बड़ा, आपके स्कूल में आपका टीचर है, ओके, अपने टीचर को बताएं कि फलां बच्चा मुझे तंग कर रहा है और ऐसे ऐसे मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। और जो दूसरी बात जो आपने करनी है वो अपने घर में है तो आप अपने पेरेंट्स को बताएंगे। ओके, ऐसा नहीं कि आपने उधर ही झगड़ा शुरू कर देना है और खुद बड़ा बन जाना है, ऐसा नहीं, अपने बड़ों को बताना है। ये एक अच्छे बच्चे की क्वालिटीज होती हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप में है। गुड। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ स्टैंजा, व्हाट इफ यू सी अ बुली पिक ऑन अ फ्रेंड, हाउ डू यू मेक द meanness come to an end। ओके, आप समझ आई, वो यहां क्या बता रहे हैं, कभी कभी ये भी होता है ना कि हमें जो अपने फ्रेंड्स हैं बेटा वो बहुत प्यारे होते हैं ना, अच्छा फ्रेंड जो होता है वो हमेशा प्यारा होता है, लेकिन सपोज तंग करने वाले ने अगर आपके फ्रेंड को पकड़ लिया, ओके, उसे तंग करना शुरू कर दिया, तो तब आप क्या करोगे, यहाँ इसमें यही बताया जा रहा है। तो इट मीन्स अब तो बदतमीजी की हद हो गई, पहले आपको तंग किया, फिर अब आपको तंग करने के लिए आपके फ्रेंड को पकड़ लिया, आपके फ्रेंड को तंग करना शुरू कर दिया, तो आप क्या करोगे। देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में हमें क्या बताया जा रहा है कि हमें तब क्या करना चाहिए। टेल द बुली टू स्टॉप, टेक योर फ्रेंड बाय द हैंड, गो फाइंड अ ग्रोन अप, दे विल अंडरस्टैंड। ओके, अब इस स्टैंजा में हमें ये बताया जा रहा है कि आपने क्या करना है, उस तंग करने वाले को बताना है कि स्टॉप, रोक दो, और अपना दोस्त उससे ले लेना है, छीन लेना है, जो जिसे उसने पकड़ रखा हो या जिस भी वे में वो तंग कर रहा है, तो आपने अपने फ्रेंड को वहां से हटा लेना है। ओके, उसका साथ देना है, ऐसा नहीं है कि वहां से भी अवॉइड करके चले जाना है। नो,
अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ओके, कि एक दोस्त वो जो मुसीबत के वक्त काम आता है, ये माइंड में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कहा गया है कि आपने अपनी जगह छोड़ देनी है, हट जाना है अगर कोई तंग करना है। वो अगर कोई आपको तंग कर रहा है, लेकिन अगर आपको शर्मिंदा करने के लिए, आपको तंग करने के लिए कोई आपके दोस्त को तंग कर रहा है, तो तब आपने हटना नहीं है, आपने उसे रोकना है और अपने दोस्त को लेके फिर वहां से हटना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, गो फाइंड अ ग्रोन अप, कि अपने किसी बड़े को बताना है उस तंग करने वाले बच्चे को। क्योंकि मोस्टली बच्चे होते हैं बेटा जिनकी आदत होती है तंग करना, तो उस तंग करने वाले बच्चे को या तो टीचर खुद देखेगा या आपके पेरेंट देखेंगे, कोई भी बड़ा देखेगा, आपने खुद से कुछ नहीं करना। हैव यू गॉट? ओके, नेक्स्ट लास्ट में क्या बताया जा रहा है, अ स्कूल इज अ सेफ प्लेस टू लर्न, ग्रो एंड प्ले। इफ यू स्पीक अप एंड स्टैंड अप, बुली कांट ruin the day। ओके, अब ये स्कूल एक कौन सी प्लेस है बेटा, स्कूल एक सेफ प्लेस है। हमेशा आपका क्लासरूम, आपका स्कूल एक सेफ प्लेस है, क्योंकि वहाँ टीचर्स होते हैं आपको कवर अप करने के लिए, वहाँ आपके प्रिंसिपल्स, आपके कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, आपकी मैम्स होती हैं, आपके सर होते हैं। ओके, तो वो सेफ प्लेस है। अगर आपको कोई तंग करता है तो आपने क्या करना है, चुपचाप बैठे नहीं रहना। सो बी कॉन्फिडेंस, क्लास में खड़े होकर अपने टीचर को बता दें कि ये मुझे ऐसे कह रहा है या मुझे ऐसे कह रही है, मुझे तंग कर रही है। ओके, तो नेक्स्ट उससे हो जाएगा कि मैंने बच्चों को तंग नहीं करना, और वो आपका दिन भी खराब नहीं कर सकेंगे वो बच्चे जो तंग करते हैं। गॉट इट? लेकिन सबसे अहम बात क्या है बेटा, बाय निकी एक्समिट, ये जिसने लिखी है, कमाल की लिखी है पोएम बेटा। तो उस राइटर ने क्या कहा है, पोएटस ने क्या कहा है, वो कह रहा है, वो पोएट कह रहा है कि आपने चुप नहीं रहना है, फिर किसी बड़े को बताना है। क्लास स्कूल में तो आप अपनी फौरन अपने टीचर को बताएं, लेकिन पहला मैसेज क्या है, हमने किसी को तंग नहीं करना है, बिला वजह भी किसी को नहीं करना है, अगर कोई वजह भी है तब भी नहीं करना है। ओके, सो वी हैव टू स्टे काम। यहाँ इस पूरी पोम में हमें इस टाइप का मैसेज दिया जा रहा है कि हमने कभी भी किसी को तंग नहीं करना है, हमने अच्छे से रहना है, हमने फ्रेंडली रहना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है। ओके, एक दूसरे से चीजें शेयर करनी है, बजाय इसके कि हम किसी को तंग करें। और हमारी इस सारी लर्निंग का मकसद बेटा, हमारा स्कूल आना, यहाँ इतनी किताबें पढ़ना, इतने वजनी बैग लेके आना, उनका मकसद ही यही है कि हमारा बिहेवियर चेंज हो सके। हम क्या करें, हम अच्छी जो मैनर्स हैं वो सीख सकें। और अच्छे मैनर हमेशा यही कहते हैं कि किसी को तंग ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, आपस में प्यार से रहें। ओके, तो इस तरह आज का ये लेसन हमारा एंड हुआ। तो कल हम अपने लेक्चर 1 के साथ हाजिर होंगे। सो टिल दैट टाइम, सी यू सून। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।